Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel वहाब वफ़ा ऑफिशियल। खुश आमदीद मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं वहाब वफ़ा ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब से। Let's start our lesson for today. Let's start our lesson of today. Okay? आइए शुरू करते हैं अपना दर्स, आज का दर्स। देखिए आज का दर्स शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी हुरूफ। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में हुरूफ तहज्जी या तहज्जी कहते हैं उर्दू में। यानी इसका डिफिनीशन क्या है? आइए मैं आपको बताते हूँ। अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश डिफिनेशन यानी तारीफ़। अल्फ़ाबेट is a set of letters. Okay, alphabet is a set of letters which is used in fixed order in a written particular language. Okay, we will write it in a particular languages. यानी particular language. Okay, यानी ख़ास language, यानी जिसी भी any languages have alphabet. Okay, any languages have alphabet. Look here, alphabet यानी in English alphabet we have in Urdu alphabets we have Persian alphabets, we have alphabet we have Arabic alphabet we have. Here I am teaching you English alphabet. Okay, I am not teaching you Arabic alphabet or another alphabet. Okay, I am teaching you here Urdu and English here. Okay, inshallah you will learn one by one. Okay, come here. Alphabet definition I told you. यानी now alphabet उर्दू में क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी हुरूफ का मजमुआ है। मजमुआ यानी सारा। मजमुआ हुरूफ का मजमुआ है जो किसी ख़ास ज़बान की अल्फाज लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ इस्तेमाल होता है? हुरूफ तहज्जी इस्तेमाल होता है जो किसी ख़ास ज़बान के अल्फाज लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। और सेट ऑफ लेटर्स, ये अल्फ़ाबेट यानी हुरूफ तहज्जी हुरूफ का मजमुआ है। यानी कैसी? इधर देखो, यानी ए आखिरी तक, यानी आखिरी ज़ायद तक इसका सेट है। यानी बॉक्स है, इसका सेट है। इसको क्या कहते हैं? इसको हुरूफ तहज्जी कहती है। देखिए, यानी जब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट यानी हुरूफ तहज्जी के किसी ख़ास ज़बान का एक ज़बान का हम बात कर रहे हैं। जब हम एक ज़बान की बात कर रहे हैं उस टाइम हम अल्फ़ाबेट कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे। अल्फ़ाबेट्स यानी रॉन्ग, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, सही नहीं है। अल्फ़ाबेट यानी एक ज़बान के लिए इस्तेमाल जब हम बात करते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं उस टाइम अल्फ़ाबेट कहेंगे। Whenever we talk about one language, we must tell it, we must write it, we must to pronounce it alphabet. Okay, when we talk about two languages, Urdu or Persian or another Arabic, many more languages if we are talking about, at that time we use it alphabets. Yani we add s here, we edit s here. Okay, if we are talking about one language, just we will see it, we will tell it alphabet. Okay, I hope you will understand. Inshallah you will understand. Okay, come. I will read it from E to Z. Okay, come here. A, B, C, D, E, F, G, H, I,
G, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, या W, X, Y, Z. Okay, all are what? All are letters. Okay, not alphabet. They all are letters. We called it letters. Letters यानी हुरूफ. सबको क्या कहते हैं? सबको A to Z से सबको कहते हैं letters, not alphabet. इसको कहते हैं उर्दू में letters, इंग्लिश में letters, उर्दू में हुरूफ. ठीक है? Okay, here we have two types of alphabet. Alphabet is written here. Two types of alphabet is written here. One is capital letter, okay? One is capital, one is small, okay? Bari huruf means capital, okay? Capital, okay? Capital letter. छोटी हुरूफ यानी small letter, okay? What's capital letter? What is small letter? Okay, I will tell you, inshallah. You will learn, inshallah. You will learn it. Capital letter. What's capital letter? Capital letter is this one, okay? Not this one. Capital letters, this one. A, B, A, masalan E, masalan A, B, C, D, E. इसको यानी we will pronounce it this one little bit long, okay? E, okay? This one A, this one E, F, G. These all are capital letters. Here it's written what? It is written here, and capital letters. In a capital letters, it is written here, okay? यानी हुरूफ, बड़ी हुरूफ क्या है? बड़ी हुरूफ वो है जो बड़ा लिखा आता है, बड़ा लिखा गया या बड़ा लिखा हुआ आता है उसको, यानी बड़ा है, हुरूफ का बड़ा लिखा आता है या बड़ा है, उसको क्या कहते हैं? उसको बड़ी हुरूफ कहते हैं. देखो ये सब, देखो ये बड़ी हुरूफ है, ये सारा बड़ी हुरूफ है उर्दू में, बड़ी हुरूफ कहते हैं उर्दू में. देखिए, व्हाट्स स्मॉल लेटर? ओके, हैव अ लुक हियर. व्हाट्स स्मॉल लेटर? यानी स्मॉल लेटर क्या है? स्मॉल लेटर इज दिस वन, ओके? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी, के, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये क्या है? What's it? What are those? What are those? Those are. What are these? These all are small letters. Okay? यानी ये सब क्या है? ये सब छोटी हुरूफ है. छोटी हुरूफ. ओके, आपको समझ आया होगा. छोटी हुरूफ क्या है? ये है, देखो ये नहीं है, ये बड़ा हुरूफ है, ये छोटी हुरूफ है. देख, आपका समझ आया होगा इंशाल्लाह. ए, बी, सी, डी, ए, एफ, जी, एच, आई, जी, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. यानी हम सबको क्या कहते हैं? ए से शुरू यानी ज़ायद तक क्या कहते हैं? इसको छोटी हुरूफ कहते हैं या बोलते हैं उर्दू में. यानी हम इधर क्यों लिखा? लेकिन इधर जगह नहीं था, इसलिए मैं इधर लिख दिया. देखिए, आपको टेंशन ना हो, आपको, यानी आपको कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, इंशाल्लाह. ओके, इंशाल्लाह यू विल लर्न. ओके, कम हियर. Okay, I will tell you this. Okay, first I must to tell you about these lines. What are these lines? यानी ये lines क्या है? ये line ये है जब आप नोटबुक खरीदता है या किसी दुकान से या किसी डिक्शनरी यानी शॉप से
डिक्शनरी शॉप यानी बुक किताबखाना से, यानी आप इंग्लिश किताब खरीदेगा, जब खरीदेगा उस टाइम ख़रीद लेगा, जब उस टाइम आप देखिएगा आपको पता चलेगा इंग्लिश बुक में 4 लाइन आता है, ठीक है, इंग्लिश बुक में 4 लाइन आता है। देखो 1 2 3 4, क्यों 4 लाइन आता है? यानी इसलिए 4 लाइन आता है, जो बिगिनर है, जो सीनियर नहीं है, जो अभी इंग्लिश शुरू किया हुआ है लेकिन उसको यानी इंग्लिश बआसानी या समझने के लिए या आसानी से सीख सके, इसलिए उसको 4 लाइन दिया हुआ है, यानी उसका हुरूफ, उसका लिखना अच्छा आ जाए, ओके, इसलिए इसको 4 लाइन दिया हुआ है इंग्लिश में, ओके, अंडरस्टैंड। whenever you go to stationery shop whenever you buy notebooks of English book, you will see here, you will see a notebook of English, you will see 4 lines. There are 4 lines, okay. If whenever you want to write ABC, you must to write it above 3 lines. ABC capital 1, you must to write above 3 lines, not 4 lines, okay. Look here, I'm written here in 3 lines, okay. Look, A, look, A, B, C, D, A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तक till end I have written in 3 lines, okay, not 4 lines, in 3 lines. Which one? Which letter? Capital letter, okay. Capital letter I have written. Which lines I have written? I have written capital letters in 3 lines, above 3 lines, okay. Inshallah, I hope you will understand. We write it small letters. We write it small letters. Okay, I'm sorry. Small letters. Okay. Whenever you want to write it, you must to write at 2 lines. Okay, in English, in small letters, you must to write in English notebook at 2 lines. Okay, you will understand this one. Okay, never forget this one. Okay, at 2 lines in English notebook, you write it small letters. Look here, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Okay. उर्दू में यानी स्मॉल लेटर्स यानी छोटी हरूफ को जब आप लिखना है आपको 2 लाइन यानी मबैनी लाइन 2 लाइन से लिखना है। आपका जहन में ये रखे, आप न भूल जाए इसको, देखिए इधर देखिए मैं किधर लिख दिया इसको, मैं लिखा है इधर यानी मबैनी 2 लाइन से, 3 लाइन से नहीं, बड़ी हरूफ को 3 लाइन से यानी छोटी हरूफ को 2 लाइन से इंग्लिश नोटबुक में। ओके, मैं बता रहा हूँ इंग्लिश नोटबुक को, उर्दू नोटबुक को नहीं बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश नोटबुक को। समझ आया होगा आपको। देखिए इधर 2 मबैनी 2 लाइन में मैं क्या लिखा हुआ है, छोटी हरूफ लिखा हुआ हूँ। देखो इधर A, B, C, D, A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, सबको स्मॉल लेटर्स कहता है। 4 लाइन 4 खत यानी 4 खत के माबैनी 2 लाइन में लिख जाता है छोटी हरूफ। Okay, come about. I must to tell you about English alphabet, English letters, all about. I must to tell you. मैं आपको बता दो सब अल्फ़ाबेट के बारे में, सब इंग्लिश लेटर्स के बारे में सबको बता दो आपको। क्यों इंग्लिश यानी बाई तरफ से आता है, इसका वजह यह है, ये लाज़िम ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है। ओके, इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेजेस in international and is a second, English is a second language. Okay, English is not our language, English is a foreign languages. Okay, English is the rule, it's the rules of English must read, must written from left side. Okay, from left side यानी बाई तरफ से लिखा आता है या
पढ़ती है या पढ़ती है या लिखती है या क्या यानी बाई तरफ से, यानी बाई तरफ से शुरू करते हैं। ठीक है, इधर देखो, मैं सब चीज़ को किधर से लिखा हुआ हूँ, लेफ्ट साइड से, यानी बाई तरफ से। समझ आया होगा आपको। देखो इधर अल्फ़ाबेट, हुरूफ ताजी यानी उर्दू इस तरफ से, देखो उर्दू दाई तरफ से लिखा आता है या पढ़ती है दाई तरफ से। उर्दू, अरबिक, पर्शियन, फारसी, मैनी मोर लैंग्वेजेस, यानी अदर लैंग्वेजेस, अदर ज़बान, किसी और ज़बान को यानी इधर से शुरू करते हैं, यानी दाई तरफ से शुरू करते हैं। लिखनी, पढ़नी, सब कुछ दाई तरफ से शुरू करते हैं। इंग्लिश को बाई तरफ से शुरू करते हैं। इसको आपका जहन में, अपने जहन में रख दो। देखिए, इधर से शुरू होता है। देखो, बाई तरफ से, दाई उस तरफ को कहते हैं, बाई इस तरफ को कहते हैं, यानी बाई तरफ से शुरू होता है या लिख जाता है या पढ़ती है बाई तरफ से। लाजिम हमको पढ़ती है, लिखती है बाई तरफ से। ओके, आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। ओके, कम टू वावल्स, यानी वावल्स क्या है, कंसोनेंट्स क्या है, यानी क्या है, लेटर्स क्या है, व्हाट्स वावल्स, व्हाट्स कंसोनेंट्स, व्हाट्स लेटर्स। ओके, वन बाय वन आई विल टेल यू व्हाट्स वावल्स। वावल इज अ स्पीच साउंड, यानी वावल इज अ स्पीच साउंड। When it's a speech sound, we pronounce it from lung, yani from our thing, from lung we will pronounce it. It's called vowels. Okay, उर्दू में वावल्स को क्या कहते हैं? उर्दू में वावल्स को हुरूफ तकरीरी कहते हैं। ओके, तकरीरी आवाज़ कहते हैं। तकरीरी आवाज़ उर्दू में वावल्स को कहते हैं। वावल्स क्या है, व्हाट्स वावल्स, यानी वावल्स क्या है। आ जाओ, मैं आपको बता दूं वावल्स क्या है। वावल्स ये है, वावल्स ए, आई, ओ, यू, ई, यानी ये पांच को क्या कहते हैं? इस पांच को वावल्स कहते हैं। क्यों वावल कहते हैं? इसका साउंड है। ओके, इसका यानी आवाज़ है, ऊंचा आवाज़ है, यानी अपनी जिस्म से आवाज़ निकलती है, यानी ऊंचा करते हैं। मसलन ए, आई, ओ, यू, ई कहते हैं। देखिए, यानी एग्जाम्पल क्या है, यानी इसको कैसे यूज़ करते हैं, यानी इसका मिसाल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। यानी इसका एग्जाम्पल, मिसाल, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन इंक, एन अम्ब्रेला, एन एग, एट्सेट्रा वगैरह। ओके, जब आप वावल्स जब भी वावल्स हुरूफ के पहले में आ जाए, पहला वर्ड में आ जाए, पहला लुगत में आ जाए, पहला हुरूफ में आ जाए। कैसे हुरूफ? यानी एप्पल, यानी एंक, या ऑरेंज, अम्ब्रेला, या ईग। उसको हम क्या यूज़ करना है? जब पहले वर्ड में, पहले लुगत में, या पहले वर्ड में, यानी लफ्ज़ में, पहले जुमले में क्या आ जाए? वावल आ जाए। जब भी वावल आ जाए, उस टाइम हम क्या यूज़ करना है? उस टाइम हम एन यूज़ करना है। कैसे? एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन यूज़ करना है। अगर एन यूज़ नहीं करना है, उस टाइम आपका जुमला गलत है, दुरुस्त नहीं है। ओके, कम टू कंसोनेंट्स। कंसोनेंट क्या है? कंसोनेंट भी साउंड है। कंसोनेंट इज अ साउंड, is lower sound, not a sound is a big high sound, it's a lower sound. Okay, consonant, यानी इस consonant को तलफ़ुज़ करना है। कैसे तलफ़ुज़ करना है? मसलन B, C, D,
F G H G K L M N P Q R S T V W X Y Z, इसमें सबको क्या कहते हैं? What are these? These all are consonants. Okay, consonant ये है, इसमें वावल्स नहीं है. ओके, इसमें बी से शुरू, यानी इसमें यानी ए इंग्लिश का ए नहीं आता इसमें, यानी आई नहीं आता है, यू नहीं आता इसमें, यू आई मसलन ओ नहीं आता है, मसलन ई इसमें नहीं आता है. कंसोनेंट्स में ये यूज़ नहीं करना है, नहीं आता है. कंसोनेंट्स में बी से ज़ाइड तक आता है लेकिन वावल्स नहीं आता है. नेवर comes in consonant vowels never comes. Okay, remember this. Okay, come to letters. Yani what's letter? Letter as the basic symbol, in alphabet is called letter. Okay, letter, it's called letter. Look here, these all are letters. From E we will start it till end Zeit, we end it till Zeit, all are called letters. Okay, we called it in English letters. यानी क्या है? लेटर्स वो है जो बुनियादी तौर पे या असासी तौर पे अल्फ़ाबेट में आता है या यूज़ करता है या आता है अल्फ़ाबेट में, उसको लेटर कहते हैं. लेटर इज़ द पार्ट ऑफ एन अल्फ़ाबेट. Letters is a part of alphabet, in alphabet. Letters, हुरूफ यानी हुरूफ अल्फ़ाबेट्स का, यानी अल्फ़ाबेट का हुरूफ अल्फ़ाबेट का एक हिस्सा है, हुरूफ तहजी का एक हिस्सा है. क्या है इसके माबैन, यानी इसके अंदर में आया है, क्या आया है? इसके अंदर में लेटर्स आया है. हुरूफ तहजी यानी हुरूफ आया है, हुरूफ ताजी नहीं. हुरूफ ताजी अल्फ़ाबेट को कहते हैं, इसको समझ ले. अल्फ़ाबेट को उर्दू में हुरूफ ताजी कहते हैं, लेटर्स को हुरूफ कहते हैं. जस्ट हुरूफ यानी ए से शुरू ज़ाय तक, इसको सबको हुरूफ कहते हैं उर्दू में. अल्फ़ाबेट यानी किसी ख़ास ज़बान का लिखने में आता है, उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं. लेटर्स उसका यानी अंदरूनी, यानी अंदर में क्या हुरूफ आता है, उसको सबको लेटर्स कहते हैं.